Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 17th of Feb, and the markets closed exactly where they closed yesterday. So, from a positional standpoint, it was quite an uneventful day, but today we had Nifty's weekly expiry, and probably today is the toughest of the expiries in this month so far. And this is not just from the seller's point of view, but even for buyers, it was quite a tough markets to play today because the market was chopping left, right, and center, and today's expiry was completely filled with rampant gamma. Over the last couple of weeks, the market's realized volatility was well in line with what the premiums were implying, but today suddenly the realized volatility was much higher than what the premiums were implying. The straddle opened somewhere around 100, but then the market was all over the place. We opened at somewhere around 25,650 levels, and from there we slid another 80 points and then shot up another 170 points, then dropped 100 points, and again in the range between 25,650 and 25,750, the market chopped multiple times with the straddle premiums extremely low. So around 50-60 rupees का straddle premiums पे market 70-80 points का move continuously कर रहा था, and that too the markets were hugely mean reverting with a bit of overextension, and the gamma was throughout the day. And towards the end of the day, both the calls and the puts quadrupled multiple times, which kind of added the pain to the sellers. But at the same time, even the buyers could not capture the momentum because the momentum was not giving any sort of follow through kind of a move, but rather it used to be quickly reverting back to its means. So tomorrow is Sensex 1 DTE, and the straddle premiums are trading somewhere around 600, which is slightly better than usual premiums. So let's get to the terminal and let's see कल के 1 DTE के लिए क्या ट्रेड प्लान्स हम बना सकते हैं. All right, डेली टाइम फ्रेम पे द मार्केट्स ने कल एक बुलिश एनगल्फिंग, एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया था, एंड आज भी मार्केट उसी का फॉलो थ्रू दे रहा है. एंड यस, मार्केट्स में आज गैप डाउन जरूर हुआ, एंड विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स वी इवन गॉट टू सी अ डिप हियर. एंड कल मैंने वीडियो में एक चीज बताया था कि अगर मार्केट इस बड़े ग्रीन कैंडल का 50% के आसपास अगर रिट्रेसमेंट करता है तो देन दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एड ऑन टू अवर बुलिश पोजीशन विद द लो ऑफ दिस कैंडल एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस ऑन अ पोजिशनल बेसिस. बट मैं तो पोजिशनल ट्रेड नहीं करता हूं, but if somebody traded that, let me know in the comment section. And yes, 26,000 will still be acting as some sort of a local maxima at least till the end of this monthly expiry. So देखना पड़ेगा कि market कौन सा range shift करने वाला है. Is it about 26,000 level or is it below 25,000 level? Time has to tell. But in my opinion, 26,000 level जो है इतनी आसानी से breach नहीं होने वाला है, because after this week we have a monthly expiry next week. So देखना पड़ेगा, will we be seeing some sort of a short covering rally or will the market stay within this range? अगर lower time frame की बात करें तो yes, there was a gap down today and the markets were quite volatile. अगर आप देख सकते हैं कि the candle range also kind of were wide today, and markets 70 points gap down khula, and within the first 10 minutes they dipped even further, almost 70-80 points ka further down move aaya, and this spiked the puts by great extent. And at this point even the straddle was spiking, and the straddle spiked by almost 15%. जो 98-99 के आसपास जो straddle trade कर रहा था वो वापस 110-112 तक almost straddle spike देखने को मिला. So it was a decent 15-16% spike on the straddles as well. So इस पॉइंट पे यहाँ पे CPR है, आप जाके इंडिकेटर लगा के चेक कर सकते हैं. यहाँ पे CPR है तो मार्केट ने CPR के आसपास एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, एंड वहां से एक काफी फेरोशियस अपमूव मार्केट्स ने दिखाया. बिकॉज इतना लो के बाद मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट्स ट्रैवल किया अप टिल 25,700 लेवल्स. बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन, इट काइंड ऑफ क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ अ फेक ब्रेकआउट हियर, एंड उसके बाद एक शार्प डाउन मूव भी देखने को मिला विच स्पाइक द पुट्स रियली बैड, एंड अगेन वहां से उस डिप को बाई कर दिए गए, एंड अगेन देयर वाज अनदर काइंड ऑफ अ चॉपिंग एक्शन. तो आप देख सकते हैं कि एक 150 पॉइंट का अपमूव को देखने को मिला, बट वहां से अगेन 100 पॉइंट डाउन मूव, 100 point up move, and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there has been a lot of chopping on a lower time frame, and even towards the end of the day the calls 4x here, the puts 4x here, and again the calls 4x, and even post 3 o'clock the calls and puts massively spiked on both the sides. So it was a choppy kind of the day in and in. So मेरा जो PNL है तो I closed 0.2% in red. So this was the first red day of this month, and honestly speaking, I was not
very happy with how I traded because at this point I kind of traded in a revenge mode. मतलब यहाँ पे मेरा mark to market 0.1% नेगेटिव पे चल रहा था तो I wanted to close in green. तो यहाँ पे थोड़ा मैंने साइज ज्यादा कर लिया था एंड उसके बेसिस पे मतलब थोड़ा यहाँ पे कॉल्स एंड पुट्स दोनों तरफ मैंने चॉप हो गया एंड देन द मार्क टू मार्केट वेंट टू 0.2% इन रेड एंड यहाँ से मैं रिकवर कर ही नहीं पाया बिकॉज टिल द एंड ऑफ द डे आई कॉन्स्टेंटली गॉट चॉप लेफ्ट राइट एंड सेंटर. सो टुमारो इज सेंसेक्स 1 DTE. तो अगर सेंसेक्स की स्ट्रैडल की बात करें तो यू कैन नोटिस दैट द स्ट्रैडल प्रीमियम्स आर स्लाइटली बेटर. 600 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है बट अगेन वन हैज टू होप दैट देयर शुड नॉट बी एनी मैसिव इन ओवरनाइट क्रश. अगर ओवरनाइट पे अगर 50 60 या 100 पॉइंट का अगर एक क्रश मिल जाता है देन अगर एंड अगेन कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशली शॉर्ट वॉल डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग थोड़ा डेड जैसे हो जाता है बिकॉज इवन कल के दिन 820 के आसपास स्ट्रैडल क्लोज हुआ था एंड टुडे वी ओपनड एट 720. ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक क्रश हर रोज ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है. तो इफ वी गो बाय दैट लॉजिक, इफ वी गो बाय दैट पैटर्न तो मोस्ट प्रॉब्ली 520 530 के आसपास कल स्ट्रैडल खुलने वाला है. तो एनीथिंग अबव 550 यू कैन take some amount of chance in the delta neutral trading, but 500 के नीचे अगर straddle trade करना शुरू करेगा especially within the first 15 minutes then we should just be waiting for the markets to hit the support and resistances level and वहां पे price action based trades हमको लेना पड़ेगा. तो lower time frame पे जाके बात करेंगे तो yes we have got some amount of price action points to watch for and आज का जो high है 83,550 level it is also a decent price action point and यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे multiple touch points है. Even today's dip was also bought at this point and this was previously a resistance and this was also previously a resistance. So this 83,000 level and it also happens to be a round number level. तो 83,000 level जो है एक काफी अच्छा point बन सकता है. तो अगर market कल gap down खुलता है then wait for the markets to dip towards 83,000 levels and 83,000 level पे हम लोग एक mean reversion trade ले सकते हैं in the form of naked puts. तो कल के लिए मैं naked puts जाना पसंद करूंगा with strict system stop losses and आप कॉल डेबिट स्प्रेड्स भी आप कर सकते हैं. बेसिकली लाइक एट द मनी कॉल को आप बाई करो एंड ओटीएम कॉल को आप सेल कर सकते हैं. तो बेसिकली वर्टिकल स्प्रेड्स ट्रेड कर सकते हैं या नेकेड ऑप्शन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए. दैट इज व्हेन द मार्केट्स ओपन गैप डाउन. तो अगर मार्केट्स फ्लैट खुल के लेट्स से प्राइस एक्शन बना के 10 o'clock के पहले अगर इस लेवल को तोड़ देता है विद गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स देन वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. अगेन एज आई ऑलवेज से इसका स्विंग का जो लोअर ये है उसको स्टॉप लॉस रख के हम लोग वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. बट एट द सेम टाइम डोंट वेट फॉर बिगर टारगेट्स बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस को हिट करने वाला है. तो कोई भी रेजिस्टेंस से मार्केट वापस आ सकता है. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बहुत टाइटली हम लोगों को ट्रेल करना है. तो बेसिकली हायर लोस को ट्रेल करते करते जाना है. तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूड बी गिविंग बैक लॉट ऑफ योर प्रॉफिट्स. बट अगेन अगर आपको ट्रेंड फॉलोइंग करना है सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग ट्रेंड फॉलोइंग एंड टू कैप्चर लार्जर प्रॉफिट्स. बट इन एनी केस अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है दैट इज 83,900 के आसपास आता है देन वी शुड बी आइडियली बुकिंग द प्रॉफिट्स. सो मैक्सिमम हम लोग एक 300 पॉइंट्स का एक टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं. एंड अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ अगर आपको एक अच्छा खासा एक रेंज दिख तो जाता है बट एट द सेम टाइम मार्केट्स विल बी वोलेटाइल एंड मोस्टली आपका जो डेल्टा न्यूट्रल में जो वॉलिटिलिटी क्रश जो मिलती है एंड टाइम डीके डीटा डीके जो मिलती है वो मोस्ट ऑफ दैट प्रॉफिट्स विल बी गोइंग अवे इन एडजस्टमेंट कॉस्ट. बेसिकली अगर आप 83,300 पे स्ट्रैडल बनाओगे देन मार्केट्स नीचे आएगा तो आपको स्ट्रैडल को रोल करना पड़ेगा या कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा एंड सडनली मार्केट्स वापस आएगा. सो बेसिकली मार्केट्स आपने जो ट्रेड लिया है उसी लेवल पे आएगा बट सिंस यू हैव डेल्टा हेज्ड योरसेल्फ इन बोथ द डायरेक्शंस मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में कुछ पैसे आने वाला नहीं है. सो टुमारो मेरे लिए डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स या शॉर्ट वॉल ट्रेड्स मेरे लिए ना है एंड आई विल ओनली बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू कम नियर माई लेवल्स. अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो देन अगेन वेट फॉर द स्ट्रैडल्स टू स्पाइक. अगर स्ट्रैडल 550 के ऊपर अगर मिलता है विथ अ मार्केट्स गिविंग अ बिग गैप अप or big gap down then we can actually trade straddles with probably 15 or 20% size. 15 to 20% साइज पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ क्रश विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट सीइंग मच ऑफ द ट्रेड्स टुमारो एंड यस पोजीशन साइज को थोड़ा छोटा रखो बिकॉज मार्केट्स ने थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी दिखाना चालू कर दिया है. यू कैन सी दैट द कैंडल साइजेस आर गेटिंग वाइडर एंड मार्केट्स ने थोड़ा बहुत नो मैन्स लैंड में भी मतलब ट्रेड करने का थोड़ा इशारा दे रहा है. सो
कल के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही ट्रेड्स है. वन इज इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट एंड प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड ट्राई टू कैप्चर 250 to 300 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस को कंटिन्यूसली ट्रेल करते रहना चाहिए. तो फर्स्ट टाइम अगर आपका 1:1 का एक आपका टारगेट हिट हो गया तो देन प्रोबेबली यू शुड ऑफलोड योर क्वांटिटी. बेसिकली यहाँ पे आधा साइज आप कट करके बाकी आधा साइज को कॉस्ट टू कॉस्ट आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके आ सकते हैं. बट अगर मार्केट नीचे आता है तो देन आई विल नॉट शॉर्ट द मार्केट्स इमीडिएटली बट I'd rather wait for the markets to come near 83,000 levels. This will give a very good risk reward proposition and यहाँ पे आप वेट करो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम या W काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाने के लिए या एक ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल जैसे कि हमारा निफ्टी या सेंसेक्स में जो कल के डेली टाइम फ्रेम पे बना था ऐसे काइंड ऑफ एक ग्रीन एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ कैंडल बनाने के लिए वेट करो एंड जैसे वो बनेगा उसका लो का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपका कैसा रहा एंड पर्सनली आई हैव टेकन अ लॉस ऑफ 0.2% टुडे फर्स्ट रेड डे ऑफ दिस मंथ एंड I think it's okay. Of course, I'm not very happy with how I traded. But again, this is a part of the trading. You just dust yourself and march ahead. All right. So let me know in the comments, how was your expiry? I'll again see you after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.